Hello student, today we are going to learn our next poem, poem number 30, A Book Speaks. Okay, now student, see, this is a poem in which a book talks about its feelings. Okay, now first we recite this poem and afterwards I will tell you the meaning of this poem. When you drop me on the floor, I get stepped on my sides and so. Torn out pages make me groan. I feel dizzy if I am torn. Every mark and every stain on my covers gives me pain. Please don't bend me. If you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather and keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book. Okay student, it's very amazing to listen to understand this poem because here the books want to talk about its feeling to you. The books want to share its feeling to you. Okay, and now see what the books want to share with you. When you drop me on the floor, I get stepped on my sides and sore. First of all, see here the meaning of sore is, S-O-R-E, sore means what? Sore means if a body parts it's sore, it hurts when you touch or move it. Okay. If any body parts are sore means when you touch this specific part then it hurts when you touch or move it. Okay, the meaning of sore. And now see here again the meaning of this stanza. When you drop me on the floor. Okay, drop means फेंकना. जब आप मुझे फेंकते हो फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर, I get stepped on my sides and sore. Then I stepped. The meaning of steps means तकलीफ होना, परेशानी होना. Okay, and sore means sore means it's concern about the pain. Okay, it's concern about the pain. जब आप मुझे ड्रॉप करते हो, ज़मीन के ऊपर फेंकते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है और मेरे जो साइड से वो सोर हो जाते, वो हर्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. टर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन. ओके, टर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन. आई फील डिजी इफ आई एम thrown. Okay, now see here one by one the new words comes here. G-R-O-N, groan. The meaning of groan means dukh, sad. Okay, very sad. I feel dizzy. Means I am not feeling very good. I feel very bad. If I am thrown means जब आप मुझे फेंकते हो. Okay, now see the meaning of this stanza. टर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन. जब मेरे पेजेस टर्न हो जाते, फट जाते तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है. आई फील डिजी इफ़ आई एम थ्रॉन. मुझे जब आप फेंकते हो तो मुझे डिजी, आई एम फीलिंग सो सैड, आई एम फीलिंग सो बैड. मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे आप फेंकते हो. नेक्स्ट लाइन. Each mark and every stain on my cover gives me pain. Now, stains means, see here student, the word again, new word, stains, nishan, dhabbe. Okay, on my cover gives me pain. Stain, pain, rhyming words are there. Pain मतलब तकलीफ होना, दुख होना. Okay, जब मुझे मेरे बुक पे जब आप कोई स्टेन लगाते हो, कोई निशान लगाते हो और जब आप मुझे अब मेरे कवर्स को आप टर्न करते हो तो मुझे बहुत ही पेन होता है, ओके. सी अ स्टूडेंट, बुक डज नॉट लाइक द स्टेन्स. बुक्स को जब आप निशान लगाते उसको मोड़ते हो तो बुक्स को ये पसंद नहीं है, उसको भी दुख होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन.
Please don't bend me. If you do, I don't want to talk to you. Okay. Again, bend. Bend मतलब मोड़ना. बेंड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? बेंड मतलब मोड़ना. जब आप मुझे पेजेस, मेरे पेजेस को बेंड करते हो, मोड़ते हो, तब मैं क्या करूँगा अभी? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. नाउ बुक्स आर वेरी एंग्री विथ यू. वो आपसे बहुत गुस्सा हो गए. वो आपको बोल रहा है तो मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा. ओके स्टूडेंट, सी द फीलिंग्स ऑफ बुक्स. फीलिंग्स भी होते हैं बुक्स को. बुक्स आपके साथ शेयर कर रहा है. दिस इज इमेजिनरी थिंग्स बिकॉज यू नो बुक्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स. पर अगर उनमें अगर फीलिंग्स होती तो ये बात बुक्स आपके साथ शेयर करते. ये हम इमेजिन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट लाइन. बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर if you protect me from the weather. Now see here student, again ये बुक्स आपको बोल रहा है इतना होने के बाद भी स्टूडेंट आप मेरे फ्रेंड्स हो. ओके, आप जो है मेरे फ्रेंड्स हो. टुगेदर एंड वेदर, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. ये होने, इतना कुछ होने के बाद भी हम दोनों फ्रेंड्स है, टुगेदर है, एक साथ है. इफ़ यू प्रोटेक्ट मी, मैं आपके साथ रहूँगा. कब साथ रहूँगा? इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. प्रोटेक्ट मतलब अगर आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अगर आप मुझे मेरी रक्षा करोगे वेदर से, जो वेदर होता है उससे अगर आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं आपके साथ रहूँगा. Now see a student, when the rainy season is comes na, you put some carry bags or polythene to protect your books and then you put these bags in your school bag, isn't it? आप लोग क्या करते हो बारिश के सीज़न में? आपके बुक्स गीले ना हो, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप एक कवर लगाते हो, उसको प्लास्टिक कोटेड कवर लगाते हो, फिर बुक्स को बैग में डालते हो. यानी कि वो उसको रेन का जो पानी होता है उससे आपके बुक्स ख़राब नहीं होते. ओके, आप भी जो बुक्स के वो उसका आप केयर करते हो. नाउ नेक्स्ट लाइन. एंड कीप मी क्लीन सो दैट आई लुक अ टाइडी नीट एंड हैप्पी बुक. देखो अभी बुक आपको क्या बोल रहा है कि मुझे आप क्लीन रखो तो मैं कैसा दिखूँगा? तो मैं आपको जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसा आपको हैप्पी दिखाई दूँगा. आई लुक वेरी हैप्पी व्हेन यू प्रोटेक्ट मी. When you take care of me, then I am very happy, isn't it student? It's very nice poem. Okay, this poem let us think about the book's feelings. Okay, again I will explain you in English each and every meaning of this poem. See a student, this is a poem in which a book talks about its feelings. Books आपको आपके feelings के बारे में बता रहा है. It says that when someone drops it on the floor, it gets steps on and its sides feel sore. वो आपको बता रहा है कि जब आप उसको फेंकते हो ज़मीन के ऊपर तो उसके जो साइड्स होते हैं, बुक्स के पेजेस जो होते हैं, वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे उनको दुख होता है, वो मोड़ जाते हैं. It makes a noise of pain when someone tears out its pages. उसको अगर आप उसके पेजेस फाड़ते हो तो भी उसको बहुत ही दुख होता है. It feels giddy if it is thrown away. अगर आप उसको फेंकते हो या हवा रखते हो तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता. And every marks or stains on its cover gives its pain. अगर आप उसके ऊपर कोई निशान लगाते हो तो भी बुक्स को बुरा लगता है, उसको पेन होता है, तकलीफ होती है. द बुक रिक्वेस्ट यू, इसमें क्या बोला है? बुक्स ने आपको रिक्वेस्ट कर रहा है. बुक्स इट्स रीडर्स नॉट बी बेंड इट. जो उसको रीड कर रहा है उनको वो बोल रहा है कि मुझे बेंड मत करो. इट सेज इट विल नॉट टॉक टू बी पर्सन हु डज सो. अगर आप उसके साथ ऐसे बिहेवियर करोगे तो बुक्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. ओके, और वो आपके साथ बात नहीं करेंगे. अ बुक इट देन सेज दैट इट विल बी फ्रेंड्स विथ दोज हु प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदर एंड कीप इट क्लीन सो दैट इट लुक्स अ टाइडी नीट एंड हैप्पी. बुक्स वो आपको बोल रहा है
वो सब लोग मेरे फ्रेंड्स होंगे जो मुझे प्रोटेक्ट करोगे, वेदर के साथ मुझे प्रोटेक्ट करोगे और जो मुझे क्लीन रखोगे ताकि मैं बहुत अच्छा दिखूँ, सुंदर दिखूँ. Okay student, now see your student, this is your homework. Write down or copy down this poem in your notebook with good handwriting, and remember always one thing: whenever you write down anything, first of all read and then write. Okay student, bye bye, thank you.